Chapter 2 दूसरा बाब Master Cherry gives the piece of wood to his friend Geppetto. Master Cherry ने अपने दोस्त Geppetto को लकड़ी का टुकड़ा दिया. At that moment, there was a knock on the door. उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई. Come in, said the carpenter, who did not even have the strength to get up. अंदर आ जाइए, बढ़ई बोला, जिसके पास उठ बैठने की ताकत भी नहीं थी. A brisk, lively old man walked into the workshop. एक चुस्त और जोशीला बूढ़ा आदमी टहलते हुए कारखाने में दाखिल हुआ. His name was Geppetto, but when the boys in the neighborhood wanted to tease him, they called him Corn Cob because he wore a bright yellow wig. उसका नाम जेपेटो था, लेकिन जब भी मोहल्ले के लड़के उसको तंग करना चाहते तो उसको कॉर्न कॉब यानी मकई का भुट्टा कहकर पुकारते, क्योंकि वो शोख पीले रंग की मसनूई बालों वाली टोपी पहना करता था. Geppetto was very quick-tempered and woe betide anyone who called him Corn Cob. Geppetto को जब भी कोई मकई का भुट्टा कहता तो वो उस पर शदीद गुस्सा और अफसरदा होता. Good morning, Master Antonio, said Geppetto. What are you doing down there on the floor? सुबह बखैर, Master Antonio, Geppetto ने कहा. तुम वहाँ नीचे फर्श पर क्या कर रहे हो? I'm teaching the ants the alphabet, of course. मैं यकीनन चूंटियों को हुरूफ तहज्जी सिखा रहा हूँ. Much good may it do to you. हो सकता है तुम्हें इससे काफी फायदा हो. What brings you here, Master Geppetto? आप यहाँ कैसे आए, Master Geppetto? My legs, of course. But Master Antonio, I have come to ask you a favor. मैं बिला शुबा अपनी टांगों से आया हूँ, लेकिन मास्टर एंटोनियो, मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ. Here I am at your service, replied the carpenter, getting to his knees. मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ, बढ़ई ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा. I had an idea this morning. मुझे आज सुबह एक ख्याल आया. Let's hear it then. चलिए फिर उस ख्याल को सुनते हैं. I thought I'd make a wooden puppet, a really fine one, that can dance and fence and turn cartwheels. Then, together, we could travel the world and earn an honest crust of bread. What do you think? मैंने सोचा है कि मैं एक लकड़ी का पुतला बनाऊं, एक बेहतरीन पुतला जो नाच सकता हो, तलवारबाजी कर सकता हो और कलाबाजियां लगाना जानता हो. फिर हम मिलकर दुनिया का सफ़र करें और दयानतदारी से रोज़ी कमाएं. तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? Good for you, Corn Cob, cried that mysterious little voice. ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मकई के भुट्टे, उस पुरस्रार बारीक आवाज ने कहा. Master Geppetto became so angry that he turned bright red, just like a ripe tomato, and said in a rage, "Why do you insult me?" मास्टर जेपेटो शदीद गुस्से से लाल हो गया, बिल्कुल एक पके हुए टमाटर की तरह, और गुस्से से बोला, तुम मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? Who is insulting you? तुम्हें कौन बेइज्जत कर रहा है? You called me Corn Cob. तुमने मुझे मकई का भुट्टा कहा. I did not. मैंने नहीं कहा. Yes, you did. तुमने कहा. No, I did not. नहीं, मैंने नहीं कहा. Yes, you did. तुमने ही कहा. And getting more and more excited, they grabbed at one another's wigs and slapped and bit and scratched each other. और फिर गुस्सा इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे की मसनूई बालों वाली टोपी दबोच डाली, एक दूसरे को मारा, दांतों से काटा और खरोंचें लगाईं. At the end of the fight, Master Antonio found Geppetto's yellow wig in his hands
and Geppetto had the carpenter's grey wig between his teeth. झगड़ा जब खत्म हुआ तो मास्टर एंटोनियो के हाथ में जेपेटो की पीली विग थी और जेपेटो के दांतों में बढ़ई की सलेटी विग. Give me back my wig, said Master Antonio. मुझे मेरी बालों की टोपी वापस करो, मास्टर एंटोनियो ने कहा. And you give me back mine, and let's make our peace. और तुम मुझे मेरी विग वापस करो और चलो अब लड़ाई खत्म करते हैं. So the two little old men put their wigs back on, shook hands, and vowed to be good friends as long as they lived. फिर दो बूढ़े आदमियों ने अपनी मसनूई बालों वाली टोपी वापस पहनी, हाथ मिलाए और हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहने का वादा किया. Now, Geppetto, said the carpenter, just to show that they were good friends again. What can I do for you? तो फिर जेपेटो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बढ़ई ने पूछा ताकि ये जाहिर कर सके कि अब वो दोबारा अच्छे दोस्त बन गए हैं. I would like a little piece of wood to make my puppet. मुझे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की ज़रूरत है ताकि मैं पुतला बना सकूं. Master Antonio was delighted and quickly went to his bench and picked up the piece of wood that had frightened him so. मास्टर एंटोनियो खुशी से चहक उठा. वो तेजी से अपनी बेंच की तरफ गया और वो लकड़ी का टुकड़ा उठा लाया जो उसे डरा रहा था. But just as he was giving it to his friend, it wriggled so hard that it slipped out of his hands and struck poor Geppetto hard on the shin. लेकिन जैसे ही वो उसे अपने दोस्त को देने लगा, वो इतनी जोर से फड़फड़ाया कि उसके हाथों से फिसल गया और जोर से बेचारे जेपेटो की पिंडली पर जा लगा. Ah, this is a fine way to make me a present, Master Antonio. You have almost lamed me. ये तुमने मुझे अच्छा तोहफा दिया, मास्टर एंटोनियो. तुमने तो मुझे तकरीबन लंगड़ा ही कर दिया है. I didn't do it. ये मैंने नहीं किया. Oh, so I did it then. Oh, तो फिर मैंने किया है ये. It's all the fault of this piece of wood. ये सब इस लकड़ी के टुकड़े का कसूर है. Yes, I know it was the wood that struck me, but it was you who threw it at my leg. हाँ, मुझे पता है कि मुझे ये लकड़ी का टुकड़ा लगा है, लेकिन तुम ही तो थे जिसने मेरी टांग पर ये लकड़ी का टुकड़ा फेंका. I did not throw it at you. मैंने इसे तुम पर नहीं फेंका. Liar. झूठे. Now, Geppetto, don't insult me or I'll call you Corn Cob. अब जेपेटो तुम मुझे बुरा भला मत कहो, वरना मैं तुम्हें मकई का भुट्टा पुकारूंगा. Ugly monkey. बदसूरत बंदर. Corn Cob. मकई का भुट्टा. Now, as he heard himself called Corn Cob, Geppetto went blind with rage, rushed at the carpenter, and the second battle was even worse than the first. अब अपने आप को मकई का भुट्टा कहे जाने पर जेपेटो गुस्से में अंधा हो गया. वो बढ़ई की तरफ लपका और दूसरी लड़ाई पहली से भी बदतर साबित हुई. When it was all over, Master Antonio had 2 more scratches on his nose and Geppetto 2 buttons less on his waistcoat. जब लड़ाई खत्म हुई तो मास्टर एंटोनियो की नाक पर 2 इजाफी खराशें थीं और जेपेटो की कोटी में 2 बटन कम. They agreed it was a draw, shook hands again, and vowed to be good friends as long as they lived. उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुकाबला बराबर हो गया. दोबारा हाथ मिलाए और अहद किया कि हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे. Then Geppetto picked up his piece of wood, thanked Master Antonio, and limped home. फिर जेपेटो ने अपनी लकड़ी का टुकड़ा उठाया, मास्टर एंटोनियो का शुक्रिया अदा किया और लंगड़ाता हुआ घर चला गया.